This meeting is being recorded. Hi, Faryal. Can you hear us? Don't know. इर्तिका, हाय इर्तिका, आप सुन सकते हैं हमें? I think they're still joining. I don't know. इर्तिका, एक बार अपना चेक कर लीजिए माइक. Rutakshi, you're on mute. Yeah, I'm talking to Irtika on phone. Okay, okay. Am I audible? Oh, yes, yes. Hi, ma'am. Cool. We can hear you, Irtika. Okay. Thank you. Okay, okay, thank you. I will type Khairunji now. Okay, Khairunji said she's there, but I can't see her in the waiting room. So, waiting for her. Good luck, everyone, and thank you for coming on board on this. Khairunji, ये आप है क्या? Khairunji, can you hear us? नहीं. Yeah, I think she's also joining. We'll wait for 5 more minutes for more participants and then I'll just admit everyone. हाँ साक्षी हेलो हाय Okay, okay. Hi, Khairunji. Okay, ठीक है. तो ये आप ही हैं. अच्छा, ठीक है. रंजन हाँ 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 ठीक है ठीक ठीक.
I think we can start, right? In 1 minute, we can start. Everyone's okay with it? I've just admitted all of them, and I will keep admitting as and when everyone comes. Yeah. Okay, cool. Okay. 2 more people. Okay. Hi, everyone, and thank you so much for joining us today for the webinar named Art and Minority Rights. And just to give you all a little bit of a small introduction of what this is about, we've been, some grassroots organizations in India have come together to implement a project called Art for Advocacy, and we've been working on this for the past year. And the idea with the project that was supported by the Norwegian Agency for Development and Cooperation and Minority Rights International is that we try to use different tools. And here we focus on art, but art being a very bigger term here. We use these tools such as theater and zine, and we'll talk about all of them today in talking and creating communication with the, is my voice okay? Is it okay now? Or is it still breaking? Okay. So we are using tools such as art and building, community building to work with different communities, especially minority communities in India. And we've been implementing certain workshops for the past year, and we will share a small preview of it through a short film with you before we start. And okay, just adding other people who are in the waiting room, and then I will share my screen. And thank you once again for joining. Is this okay? Everyone can see my screen? Okay, cool. I will play. And if there's an issue in the audio, please let me know. The Art for Advocacy project is supported by NORAD, the Norwegian Agency for Development. The project uses creative tools such as art and theater to promote dialogue and conversations between women from minority communities as well as from communities in conflict, and create awareness towards the challenges the minority communities face today. And we've used art as a medium for expression and to tell stories and to just analyze what life in conflict zones can be like. Some of the grassroots organizations that are working on this project together are Conflictorium from Ahmedabad, Alisade and Sikka, and also the Art of Freedom project. Our work is mostly centered with women and children from minority religious communities, as well as with women refugees from spaces of conflict presently residing in India. With this particular workshop, we had the chance to do one part of it on ground, which was held in Ahmedabad. Essentially, the theatre workshop was an in-person 3 to 4 day long workshop, which ended in a community performance based on the principles of forum theatre, where the audience got the chance to inspect actors, and women from the community itself got a chance to showcase, represent, and also open up possibilities of discussions on the conflicts that they face in their everyday lives within the community. Most of these conflicts spoke about violence. Most of these discussions were about alternatives on the same and the roles we can each play in driving conversations toward finding alternatives. The online workshop was held with participants from Kashmir and also participants who were refugees and had now come to India and settled down, Afghan refugees. We did some exercises online, which resulted in artwork like puppets, poetry, zines. And the idea of the project was to create more artworks that represent their own lived reality. I think the workshop was great because I really like the zine, the way you could like tell a story through a small drawings and a few words was like great.
जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. How can we write a film and also our imagination about the home. वर्कशॉप की मदद से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिला. मेरे थॉट्स को प्लेटफॉर्म मिला, मतलब मेरे आइडियाज को प्लेटफॉर्म मिला. इसलिए बड़ी अच्छी बात क्या, आई एम सो मच ग्रेटफुल दैट यू मेड इट पॉसिबल. इट शुड बी कंटिन्यूड in future also, so that we will learn through this, so that we will learn great things. As an eventual part of the project, we are trying to build a manual or a toolkit Of how to use art for advocacy in conflict areas, which would be used in other spaces to build theatrical community-based performances and to drive conversations on finding alternatives from within the community for the conflicts that the community face. The aim is also that after we have gone through the project and we have the artworks that have been produced, we use it to advocate for these young women's voices and share how art can be used as a tool to create agency among vulnerable communities. and that is really what this entire project was about and where we are headed. I hope that was visible and also audible to everyone. Thank you. So the conversation, we can start with the seminar now, and mostly the conversation today is going to be around the legal mechanisms and what are certain legal rights that we have, or the community from minority communities in India have access to. And we have Aishwarya with us today, Aishwarya Nam, who will be moderating the session for us. I will introduce her in some words. Aishwarya is an advocate who's been practicing for the last 6 years. Her practice primarily has been before the Delhi High Court and district courts in Delhi and NCR region. She graduated from Amity Law School, New Delhi, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University with honors, and later on went to do her master's from Queen Mary University of London, wherein she obtained a distinction. Her areas of practice are service law, POSH, POSCO, matrimonial disputes, criminal law, along with arbitration. She's also an author of The Womb, which is an online magazine catering to women-centric issues. She's also an avid artist and has had 3 solo art exhibitions. Her most recent exhibition was at the Bikaner House on the theme of Astroman. Welcome, Aishwarya, and I hand over the space to you to take it forward. Thank you. Thank you, Satakshi. Thank you for that introduction. So I mean, first I would like to say a few words about Satakshi. So how Satakshi and I met. We haven't really met till now in person. We connected a long time back in 2018 through internet. I think our connection really basically is all very politicized. We met when you saw my work at an exhibition at the Left World Book Store. And since then, 2018 till now, 2023, we have been in touch only with respect to our leaning, which it's very obvious what we're going to talk about today. So today we'll be talking about minority rights in India and advocating those rights through the medium of art. When I talk about art is not just putting out whatever you're thinking or processing in your mind, your thought processes on a piece of paper. Art can be in different modes, different medium. It could be through music, it could be through dramatics, it could be through poem, it could be anything that is visible, that can be advocated, and that has a voice. So for me, art through protest recently came across during the CAA protest and during the farmers' protest. During the CAA protest, we all know that Faiz's Hum Dekhenge had become a national anthem for the entire country. And then then Shaheen Bagh had a lot of art to showcase. I remember there was specifically a place at the Shaheen Bagh where
kids, activists, lawyers, everyone, anyone from all around the country had put on their artwork just to basically show solidarity with respect to what all that was going on. And then during the farmers' protest, there's this Italian protest song, Bella Ciao, wherein the farmers had made a Punjabi version out of it. I can't recollect the title, but I distinctly remember that it was inspired by Bella Ciao, that Punjabi folklore song. And then thereon also we saw there was makeshift library arrangement wherein they were they were trying to showcase and they were trying to make people aware of Bhagat Singh and all the freedom fighters who stood up against the atrocities. And of course, there were a lot of mainstream Punjabi singers and folklore singers who had come and shown their support to the farmers. So I have always felt that art is like an uncommitted crime. You know, it basically challenges the status quo. It challenges the oppression, the violence and the injustice, and basically it questions the people in power and whatever that they're trying to impose. It's basically an act of defiance. So today we have three speakers with us. There is Idrish, there is Khairunji and Itrika. We'll be taking them one by one and basically having a dialogue and talking about their experiences and what they believe with respect to minority rights and art. So first off, I'll start with Khairunji. If she can please switch on her camera. Khairunji, कैसी हैं आप? नमस्ते. Hi, namaste. So Khairunji, so I'll give a short introduction about Khairunji and what all the work that she has done so far. She works for an organization, Parvaz, which is based out of Ahmedabad. And she was also a participant of the Project Forum Theatre Workshop. Khairunji, please आप अपनी organization के बारे में please हमें थोड़ा बताएंगे. Hi. तो जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम खैरून है और परवास करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मैं काम कर रही हूँ, जो 2002 का जेनोसाइड हुआ था गुजरात में गोधरा कांड को लेके, उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट किया और मैं भी एक उसी तबके से आती हूँ जो सर्वाइवर रहे 2002 के, और ये काम हमने यहाँ से 2002 के बाद शुरू किया, क्योंकि जिस तरह का माहौल था पूरे एरिया का, मैं जिस एरिया से आती हूँ छुआपुरा से, वहाँ पे काफी लोग डरे हुए थे और एक इतनी बड़ी जो घटना हुई थी उसके बाद लोगों की गतिशीलता बहुत कम हो गई थी, मोबिलिटी बहुत कम थी, लोग बहुत डरे हुए थे और उस दरमियान उनके बीच में जाके काम करना एक हमारे लिए बहुत चैलेंज था। तो हमने एक महिलाओं के साथ ये पहल शुरू की और मुस्लिम विमेन की लीडरशिप को डेवलप करना और उनके और एडोलेसेंट गर्ल्स के एजुकेशन को फोकस करते हुए हमने संगठन की एक प्रक्रिया शुरू की और हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम परवास संगठन है, और परवास का मीनिंग होता है कि उड़ान भरना। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ काम करने का पूरे गुजरात में ये पहला मतलब एक ऐसा संगठन था जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा था, और क्योंकि एकदम घेटो बढ़ जाने की वजह से एकदम पॉपुलेशन वहाँ पे लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से उधर रहने आ गए थे, तो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे महिलाओं की स्थितियाँ जानी, जिस तरह का कम्युनल वायलेंस चल रहा था और जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम हमेशा स्टेट का देखते हैं, तो हमें लगा कि महिलाओं को आगे लाना और उनकी लीडरशिप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये संगठन बना जिसमें महिलाएं। खैरून जी, आप थोड़ा अपना बताएंगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो लीगल वर्क है और जो लॉयर्स अटैच्ड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो किस तरीके का काम करते हैं? हाँ, जैसे कि हमने काम करते दरमियान क्योंकि हिंसा का जो घरेलू हिंसा है हमारा, उस पर भी काम रहा है और कुछ केस पोक्सो के अंडर में रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी केसेस चलते हैं तो परवास के द्वारा एक काउंसलिंग सेंटर चलाया जाता है, जहाँ पे जो फैमिली डिस्प्यूट है या घरेलू हिंसा के मामले हैं वहाँ पे हम अपने लेवल पे दर्ज करते हैं उसको, कि किसी भी महिलाओं को हिंसा प्रताड़ित है तो उसको पहले कहाँ जाना है। तो हम सभी जानते कि पुलिस स्टेशन का अनुभव अच्छा नहीं रहता,
तो संस्था के थ्रू हम लोग उनका हीलिंग प्रोसेस करते हैं पहले तो, और दोनों ही तो परिवार आपके ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलिंग और मीडिएशन भी होता है? हाँ अगर जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो आ रहे हैं लोग आ रहे हैं वो बहुत ही फाइनेंशियली वीकर है और उनकी अपनी पहुंच नहीं है कि वो कोर्ट तक जाए, एक वो डेली वेजेस है, तो उन्हें वो बहुत डरते भी है पुलिस स्टेशन और वगैरह जाने से। तो हमारा एक प्रोसेस रहता है कि दोनों अपनी कंडीशन लेकर आए हैं कि हमें ये कंडीशन में आना है, तो इस लेवल पे हम ये चीज तय कर आए हैं, और फिर हमें उसे वकील के थ्रू, हमारे जो नेटवर्क है कुछ साथियों का, जैसे जो लीगल राइट्स पे काम करते हैं उनके साथ भी हमारा जुड़ा हुआ है। तो जैसे अल्पसंख्यक अधिकार मंच है, तो वो HRLN ग्रुप्स है, उनके साथ मिलके हम जिन्हें उसे नोटराइज करवाना होता है और जो डॉक्यूमेंट लीगल चाहिए होते हैं वो भी करते हैं, और जिन्हें लगता है कि ये नहीं है तो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के 125 और मेंटेनेंस के और DV एक्ट के केस हम उनके थ्रू मतलब तो दर्ज करवाते हैं। यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई हेल्पलाइन नंबर भी है कि अगर कोई रीच आउट करना चाहे आपकी हेल्पलाइन आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो कैसे आपसे रीच आउट कर सकते हैं, कैसे आपसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कैसे हेल्प ले सकते हैं, क्या तरीका है? ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हमारे कम्युनिटी लीडर्स है जो अपने अपने एरियाज में ही कम्युनिटी में रहते हैं, तो उन्हें पता होता है, तो वही उनको मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि हमारे कम्युनिटी लीडर्स हर एक जगह जिस जगह पे हमारा वर्किंग एरिया है तो वहाँ पे उनको पता होता है कि इस तरह का घरेलू हिंसा है, तो संस्था इन सब चीजों में काम करती है, तो वो उनको लेकर आते हैं, महिला हैं, या फिर फोन नंबर से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो जो आपकी लॉयर कम्युनिटी है, पर्सनल नंबर से करते हैं। ओके, आपकी लॉयर कम्युनिटी जो है वो सिर्फ अहमदाबाद बेस्ड है या आउट ऑफ अहमदाबाद भी है? अहमदाबाद में ही है हमारे जो साथी है, ठीक है। हाँ, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी अहमदाबाद बेस्ड है। Okay. Are there any participants who would like to ask more questions with respect to Khairunji and her work that she does? Please. Yeah, I think I will note, and if somebody raises their hand, then I will. Nikita wants to. Okay, Nikita, go ahead. Thank you, Karunji. Firstly, आप जो काम कर रही हैं, it's so valuable, especially for people who don't have access to resources. मैं बस जानना चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट के दौरान जो वर्कशॉप ऑन ग्राउंड होल्ड किया गया था फोरम थिएटर के अराउंड, उससे कम्युनिटी को कोई मदद मिली, और मिली तो आप कैसा चाहेंगी कि ये आगे लिया जाए, लाइक ये प्रोजेक्ट का? हाँ, जैसे कि हमने ये फोरम थिएटर के थ्रू हम यंग गर्ल्स के साथ और एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ भी काम करते हैं, और उनके राइट्स को लेकर, उनका एजुकेशन है या अर्ली चाइल्ड मैरिज है, या उनको उनकी मोबिलिटी पर ज्यादा समाज में पकड़ है, तो थिएटर के थ्रू हमें लगा कि यंग लड़कियां आगे आए और वो अपने इश्यूज को आर्ट के थ्रू कैसे आगे ले जाए, जो एक नया भी हो, और लोग हम जानते हैं कि म्यूजिक या आर्ट रहता है तो उससे जुड़ा हुआ लोग अपने आप को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, बातचीत से ज्यादा ये हमारे अनुभव रहे। तो ये हमारे लिए भी था कि हमने कभी ऐसे जिस तरह का भी हमारा जो आर्ट थिएटर का जो ट्रेनिंग वर्कशॉप हुआ था, वो हमने इस तरह का पहले किसी भी थिएटर में हम जुड़े नहीं थे, वो हमारे लिए बहुत नया अनुभव था। जिस तरह से मास्क और अपनी बातें, और उन्होंने रोल प्ले किया, और पूरा सभी का इन्वॉल्वमेंट था वहां पर, जो पार्टिसिपेट थे वो भी, और लोपा और साक्षी हमारे साथ थे, तो उन्होंने ही अपने इश्यूज को डिस्कशन किया, और आर्ट के थ्रू उसे ही उन्होंने मास्क के थ्रू अपने जो एक्सप्रेस, अपने जो अंदर की जो बातें थी उसको उन्होंने वो मास्क पे उतारा, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही सुंदर मतलब बना था कि वो जो बोल नहीं पाते, जो शब्द नहीं है, उसको उन्होंने आर्ट के थ्रू डिजाइन किया था। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि दिल था, आंखें थी, फ्लावर्स थे, बुक्स थी, तो इस सारी चीजों से उन्होंने अपने उदासी थी, ये सारी चीजों के द्वारा उन्होंने पूरा जो आर्ट को उन्होंने अपने सवालों को उसके अंदर
मतलब पिरोया था। तो ये बहुत बढ़िया अनुभव था। और पहले हमें इतना ऐसा जब कॉल आया था हमें पहले इसमें सहभागिता के लिए, तो हमें लगता था कि हमने कभी किया नहीं है और किस तरह करें। तो हमें लगा कि यंग लड़कियां होती है और महिलाएं हैं, उनका हमने मिक्स ग्रुप रखा था, 2 महिलाएं थी, क्योंकि हमने इस तरह से चुनाव किया था कि महिलाएं रहेंगी तो जब कम्युनिटी में कुछ करने के लिए जाना है तो वो सपोर्टिव उनके रहेगी, बातचीत डायलॉग करने के लिए कम्युनिटी में। तो इस तरह से यंग लड़कियां और विमेन दोनों ही जुड़े थे और उन्होंने अपने सवालों को आर्ट के थ्रू सेशन 2 दिन जो मतलब वर्कशॉप था उसमें भी किया। और उसके बाद सबसे बढ़िया बात थी कि उसे कम्युनिटी में ले जाना, और उसका सारा ही ऑर्गेनाइज विमेन ने ही किया। अपने यहाँ एक छोटा सा कम्युनिटी में मंडप बनाया, सबको मोबिलाइज किया और प्रोग्राम को पूरा उन्होंने ही चलाया। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब टूल रहा कि लोगों को इस मुद्दे पे जोड़ने के लिए। और उसके बाद जब अपना उन्होंने एक्ट किया और उसमें जब लोगों ने अपने आके सवाल रखे तो वो भी बहुत अच्छा था कि जब वो आर्ट के थ्रू अपने उनका जो भी नाटक था जो उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए जो कम्युनिटी की वीमेन से रिलेटेड थे। तो ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण था कि आप कम्युनिटी से रिलेटेड कर सके। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था कम्युनिटी के लिए। थैंक यू खैरून जी। आई थिंक ऑडियंस से हसन है जिनके पास एक सवाल है। हसन, यू कैन गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो। सो आपका काम मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि कोई कर रहा है इंसान ये काम इंडिया में। पर एक सवाल मेरा था कि मैंने राजस्थान में थोड़ा काम किया था बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ सरकारी स्कूल में। एंड कुछ चैलेंजेस जो मुझे लगा था कि कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी चैलेंजेस आते हैं कि जो लड़कियां आती है कई बार उनके घर वाले खुद कई बार सवाल उठाने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है एक्चुअली वहां पे, आप जाके इतने घंटे में क्या करते हो। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने इस तरह के चैलेंजेस फैमिलीज की तरफ से फेस किए, और अगर किए तो क्या, किस तरह से हैंडल करते हैं आप लोग? हाँ, जैसे कि हमें शुरुआत के दौर पे मतलब वैसे जैसे आपने सवाल किया कि लोगों को अपनी तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संस्थाओं जब लड़कियों की आप आज़ादी की बात, उनकी पढ़ाई की बात या कुछ भी नया बदलाव की बात करते हैं तो लोग तैयार नहीं होते हैं। तो हमारा अपना एक क्योंकि कम्युनिटी के साथ काम है और हम खुद भी कम्युनिटी में रहते हैं, इसलिए जब भी उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, प्रॉब्लम्स की जरूरत होती है, तो वो जुड़ाव रहता है। और ये संगठन है उसको 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, तो एक बेस बन गया है, एक रेपो बिल्ड हुआ है कि उनके जब भी बेटियों के इश्यूज है, एजुकेशन के इश्यूज है या फिर कोरोना या हेल्थ के इश्यूज है, तो हम बहुत ग्रास रूट पे लेवल पे काम करते हैं, एकदम ही जमीनी। तो हमारा कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा रेपो बिल्ड है और हमारे कम्युनिटी लीडर जो कम्युनिटी से ही है, तो वो सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि वो जो आपने कहा कि जो उनको जोड़ना में क्या चैलेंजेस होते हैं, तो पेरेंट्स को एक विश्वास है इतने टाइम से कि हमारा काम किस तरह का है। दूसरा, जो हमारे संगठन में जुड़ी हुई महिलाएं, उनकी ही ये बेटियां हैं। जो महिलाएं नहीं पढ़ी थी, कभी भी उनको पढ़ने के अवसर नहीं मिले थे, आज वो लड़कियां मतलब 12th ग्रेजुएशन और जॉब कर रही है। तो उन्हें लगता है कि हमारे परिवार में चेंज हुआ तो संस्था इस तरह के काम करती है। तो अभी हमें इतने दिक्कत नहीं आती कि लोगों को जोड़ने में तकलीफ नहीं आती। और क्योंकि यंग गर्ल्स के सवालों को पे कोई बात नहीं करता और पेरेंट्स भी चाहते कि इस पे बात हो, पर उनको नहीं पता कि क्या तरीका हो। तो उस हिसाब से भी हम लोग का पेरेंट्स के साथ और महिलाओं के साथ जुड़ाव रहता है। इन ऑल्सो मैं खैरून जी की बात में एक ऐड करना चाहूंगी फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, क्योंकि हम एज एन आउटसाइडर गए थे वहाँ ये प्रोजेक्ट पे काम करने। तो एज एन आउटसाइडर व्हाट वी अंडरस्टूड के जब हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं या ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एक्टिविटी, तो वर्किंग विद अ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑलवेज हेल्प्ड। माने वी एंटर इनटू कॉन्वर्सेशन नॉट डायरेक्टली एज एन आउटसाइडर बट थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी उस कम्युनिटी को काफी अच्छे से पहचानते हैं या they worked with them, the community trusts them. I feel like that also gives another idea कि हम local based organizations को strengthen करें, because they are the ones who know the community, are within the community and are from the community. I think that's a new way to start working
as a tool too. So just in that response. Aishwarya, और you can go ahead. Yeah, with the next. थैंक यू कैरन जी, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, एंड इफ एट ऑल आपको कभी मेरी जरूरत पड़े एज अ लॉयर, प्लीज फील टू रीच आउट, एंड आई वुड लव टू बी ऑफ एनी हेल्प एट ऑल लीगली, sure. any help. Thank you so much. Thank you so much. Next, our speaker is Idrish Mohammed. I think Idrish is connecting right now. I think he's in the, no, he's not. I just added him. He is. He's there. Yeah, he's there. Ah. So I'll first give a short intro about Idrish, and then we can start with our dialogue and whatever we intend to take it forward with. So Idrish is right now a student of Masters in Law. He's currently studying in SOAS, UK. He's also a Chevening scholar, and he did his law graduation from Jamia Millia Islamia, New Delhi. Idrish, if you could please switch on your camera, that would be better. And also unmute yourself. Yeah, sorry. Thank you, Idrish. Yeah, hi. Hello everyone. Assalamu alaikum. मेरा नाम इद्रीस है, जैसे कि ऐश्वर्या ने बताया. Yeah. So Idrish, could you please tell us what is your take on minority rights in India? I am not going to discuss the law or the art aspect of it. This is going to be two lawyers discussing about minority rights. So if you could just give us your insight on that. So the constitution envisages that there will be two minorities. One is religious, जिनको मजहबी कहते हैं, और the other is linguistic, जो जुबानी या भाषा के आधार पर है. What should be the preferred language, English or Hindi? I'm not sure about the audience. हम लोग वैसे bilingual कर रहे हैं, English हिंदी दोनों में. Okay, all right, then that's fine. So दो तरह की minorities हैं, एक रिलीजन के बेसिस पे है और एक लैंग्वेज के बेसिस पे है. लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज है उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती, बट उसके अपने इश्यूज हैं. लेकिन रिलीजन की बहुत बात होती है, क्योंकि जो इंडिया का एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सेटअप है वो 100% या लार्जली जो है कम्युनल या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स पे टिका हुआ है. और हिस्टोरिकल रीजंस भी रहे हैं इसके अपने आप में. मैं ये कभी क्लेम नहीं करता कि मैं माइनॉरिटीज के बारे में एक्सपर्ट हूँ, बट विद इन माइनॉरिटीज मुझे लगता है कि दो तरह की माइनॉरिटीज हैं. एक माइनॉरिटीज है जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, एक है जो नॉन परसिक्यूटेड है. अगर ये स्ट्रॉन्ग वर्ड हम यूज नहीं लें तो इसे कह सकते हैं कि एक मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी है और एक नॉन मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी है. मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी में मुझे लगता है कि मेजरली दो माइनॉरिटीज आती हैं. सबसे ऊपर मुस्लिम्स आते हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस आते हैं. नॉन ऑप्रेस्ड या दूसरी माइनॉरिटीज में पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट और अलग दूसरी जो माइनॉरिटीज है वो आती हैं. चूंकि मैं मुस्लिम हूँ तो शायद मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ. मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने लॉ पढ़ा है या जितना मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पर्टिकुलरली जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर आधारभूत रूप से या जो ढांचागत है उसमें आपको मार्जिनलाइज्ड सेक्शन तो नहीं मानता ना. वो आपको ये मानता है कि आप ऑप्रेस्ड है ना परसिक्यूटेड हैं. वो ये कहता है कि एक डिफरेंट कल्चर्ड ग्रुप है, उसको कुछ अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ राइट दिए जाने चाहिए. मसलन ये वो कहते हैं कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, आप उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं या कुछ उसी तरीके के चीजें. एक बात बताइए, जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर बोलते हैं एक तरीके से, और दूसरी साइड पे हम ये भी बोल रहे हैं कि हम माइनॉरिटी देयर इज अ माइनॉरिटी क्लास एज यू राइटली मेंशन. सो आपको लगता है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम यू आर सीइंग वी आर अ वेरी सेक्युलर कंट्री, yet the way the minorities are treated, persecuted, not persecuted, I'm not going there. There's a stark difference in what we say and what we actually end up doing. So what do you think of that? So there are two views actually. Academically कुछ writers ने लिखा भी है कि constitution हमेशा से ही सेक्युलर था नहीं ना, इसका कोई इसको सेक्युलर बनाने का अटेम्प्ट था. इनफैक्ट सेक्युलर वर्ड जो है अपने आप में 70s के दौर में प्रेम्बल में इंक्लूड किया गया. बट सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स का कहना है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देखेंगे तो ये हमेशा से ही सेक्युलर था. इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, लेकिन अगर आप बात करें कि एक
एक सेक्युलर मुल्क में क्या माइनॉरिटीज को स्पेशल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए क्या? आई थिंक दिस ये क्वेश्चन का आंसर करने के बजाय इस पे एक और क्वेश्चन उठता है जो इसका खुद ब खुद जवाब देता है। वो ये कहता है कि मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हम यूटोपियन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एक आदर्श दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे इंसान और इंसान में भेदभाव नहीं है कि मेरे सर पे बाल हैं या मेरे चेहरे पे बाल हैं उससे फर्क पड़ रहा है क्या, मैंने चश्मा पहन रखा है उसका फर्क है क्या, मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखी है उसका फर्क पड़ता है क्या? बट फर्क पड़ता है, कि फर्क पड़ता है चूंकि सोसाइटी में डिवाइड है। तो हम हमारा एक अटेम्प्ट रहता है, एक प्रयास रहता है कि हम एक सोसाइटी को उस दिशा में लेके जाएं जहां हम एक बराबरी के दर्जे की बात कर सकें, जहां सब कुछ एक जैसा होगा, जहां पे दो इंसानों के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, मर्द और औरत दोनों एक जैसे होंगे, उनके हुकूक एक जैसे होंगे। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंच पाते, एक अटेम्प्ट करना होगा कि जो आपसे नीचे की तरफ पुष्ट हैं उनको ऊपर पुल करने के लिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से अटेम्प्ट भी लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ज्यादा कोशिश भी करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये लार्जली जो आपका सवाल है उसी के इर्द गिर्द घूमता है। So, Idrish, not only you have worked as a lawyer in Supreme Court, and now you're a student in UK. I'm sure you have seen minorities on in both the continents. तो आपको क्या लगता है किस तरीके से how different is the treatment and how inclusive are both the countries? Like where does the difference lie? Like is there a जी please no please. अगर मैं कहूँ कि दुनिया में कोई एक ऐसा कोई ज्योग्राफिकल रीजन है जहाँ पे एकदम बराबरी है, जहाँ एकदम इक्वालिटी है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी, ना ये सही बात है। दुनिया में हर जगह अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप यूके में आते हैं तो यहाँ की अलग प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ की जो इक्वालिटी की प्रॉब्लम है वो अलग है। अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं वहाँ पे अलग है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में अलग है, एशियन में अलग है, इंडिया में अलग है, इनफैक्ट पाकिस्तान में अलग है, बांग्लादेश में अलग है। तो सब जगह की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मसला प्रॉब्लम का नहीं होता है, मसला है सॉल्यूशन का, कि हम सॉल्यूशन को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे ख्याल से कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको लार्जली ये एडमिट करना है कि प्रॉब्लम है। जो चीज मैंने यूके में खासकर पिछले 6-7 महीने में देखी है वो ये है कि एक एक्सेप्टेंस है कि मान लीजिए अगर आपको कोई आके कहे कि मतलब अगर आप एस्टैब्लिशमेंट में हैं, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, अगर आपको कोई आके कहे कि ये प्रॉब्लम है तो उनके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी है। तो हद शायद वो इस बात को ना माने, बट दे आर ओपन टू स्टडी ऑन इट, वो उस चीज को स्वीकार भी करते हैं, मानते भी हैं। इंडिया में थोड़ा सा जो मुझे एक लगा कि एक प्रॉब्लम है कि उसको स्वीकार ही नहीं किया जाता। मान लीजिए अगर बोला जाए कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है तो या तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए मान लीजिए स्वीकार कर लिया जाए तो जो जिम्मेदारी का ठीकरा है वो उसी विक्टिम के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि मुसलमान शिक्षा में आगे नहीं है क्योंकि खुद नहीं पढ़ना चाहते, मुसलमान पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं है क्योंकि उनको कोट एंड कोट पंक्चर निकालना पसंद है, मुसलमानों में जी हाँ, जैसे आप ये भी बात कर रहे हैं, जो ये इट मे बी आई वुड से दिस इज मोर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि कहाँ पे क्या है। तो आप थोड़ा बताएंगे लाइक when you were working at the Supreme Court, so what is your take as a lawyer that इतने सारे जो case laws आए हैं और जो legal point of view रहा है within the courts of India, be it High Court, Delhi High Court, any court in India for that matter. So what do you think, even if after the case laws and so much has been talked about, आपको लगता है there are still lacunas that needs to be filled and there is a lot that still needs to be worked on as far as minority rights are concerned? Because of course we have SC/ST, the Atrocities Act, but there is still a lot that needs to be worked on the minority rights. So what's your take on that? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं 10 या 20 साल पहले, यूपीए की 2 कॉन्टिन्यूस गवर्नमेंट रही थी, उन्होंने 2 अटेम्प्ट किए थे। उनके 2 अटेम्प्ट थे कि लार्जली वो एक बिल लेके आना चाहते थे जिसमें दे वांटेड टू एड्रेस कम्युनल वायलेंस, क्योंकि एक कंसीव नोशन है कि मुस्लिम्स आर जनरली विक्टिम ऑफ कम्युनल वायलेंस। लेकिन चीजें बहुत बदली हैं। देयर हैज बीन अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वायलेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि अब 3 या 5 साल या 1 साल में एक बहुत बड़ा दंगा होगा, उस दंगे के
नुकसान होंगे और उसके विक्टिम्स मुसलमान हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि दंगों में जो सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा जो मौत होती है, सबसे ज्यादा अरेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन होता है, वो मुस्लिम्स का होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पिछले 10 या 20 सालों का या 30 सालों का अगर देखें तो डिसेंट्रलाइज हुआ है। कि मान लीजिए कि पहले ये होता था एक जगह इश्यू होता था, उसका रिपरकशन कहीं होता था। आज के टाइम में इश्यू भी आपका लोकल है, प्रोसिक्यूशन भी लोकल है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल दे देता हूँ जो मैंने आगे भी डिस्कस किया है कि हाउसिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया में। वैसे भी हाउसिंग सब लोगों के पास नहीं है, तो बहुत सारे लोग टेनेंट हैं या रेंट पे मकान लेके रहते हैं। तो आप अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉश सोसाइटी का थोड़ा सा दौरा करेगा तो आपको पता चलेगा वहाँ मुसलमान नहीं रहते हैं। मुसलमान नहीं रहने के 2 रीजन हैं। एक तो उनको घर मिलता ही नहीं है किराए पर, दूसरा ये है कि जो जब वो मकान बिक रहे होते हैं या जो बिल्डर होता है उनका भी एक मोनोपोली, वो कहता है कि देखिए हम मुसलमानों को नहीं देते, मुसलमानों की एंट्री होगी तो हमारे दूसरे जो खरीदार हैं वो उसको लेना पसंद नहीं करेंगे, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो जाएगी। और ये बात कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में हो रही है, ये आपके चेहरे पे हो रही है, ये बहुत ओपनली हो रही है। ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज हैं जहाँ लिखा गया है कि मुसलमानों को यहाँ अंदर आना मना है, मुसलमान सब्जी बेचने या जो वेंडर्स हैं वो ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी नहीं आ सकते। या एक लार्जली जो एक क्रिएट किया गया वो ये है कि टू पुश मुस्लिम्स इनटू सर्टेन एरियाज। अब वो चाहे जॉब्स हो, चाहे वो आपका रहने की जगह हो, चाहे आपका बिजनेस हो, तो कुछ उनको लिमिट किया गया। उसका रिजल्ट क्या दिखता है? उसका रिजल्ट दिखता है कि जब गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए कहा जाता है तो वो कहती है हम आपके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जब सचर कमेटी का ही रिपोर्ट है, जब उन्होंने स्टडी किया था कि जो इंडिया के प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने सर्वे किया तो अंडर ग्रेड में सिर्फ 24 स्टूडेंट उन्होंने पाया था। 14 करोड़ की या 14% से या 20 करोड़ की जो आबादी है उससे सिर्फ 24 स्टूडेंट आपको इंडिया के प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आप उसे एड्रेस नहीं करना चाहते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इफ आई मे टेक दिस प्लीज माय बैड प्लीज। जो सिविल सोसाइटी या जो प्रोग्रेसिव ग्रुप है उनके साथ जो एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है वो ये है कि जब मुसलमान उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आके हमारे इश्यूज को उठाइए या आप आके हमारे मुद्दे को पटल पे लाके रखिए, तो उनकी एक डिमांड होती है। वो ये कहते हैं कि पहले आप अपने समाज में पैट्रियार्की खत्म कीजिए, पहले आप अपने समाज में मिसोजिनी खत्म कीजिए, पहले आप अपने समाज में LGBTQ और जितने भी दूसरे जेंडर के राइट्स हैं वो दीजिए, पहले आप अपने समाज में जो है सारी प्रॉब्लम खत्म कीजिए। जब आप एक आइडियल समाज हो जाएंगे तब हम आपको अपने बराबरी में रखेंगे और आपकी लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। वो ये नहीं समझते कि मुसलमान समाज भी इंडिया में ही आता है। जो प्रॉब्लम मेजोरिटी कम्युनिटी में है, चाहे वो पैट्रियार्की की हो, चाहे वो मिसोजिनी की हो, चाहे वो क्राइम्स की हो, वो सारी प्रॉब्लम मुसलमानों में भी है। तो आप ये चाहते हैं कि उस मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में आने के लिए पहले आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम एकदम आइडियल हो जाएं, हम एक यूटोपियन वर्ल्ड की तरह दिखें, हम आपके जैसे कपड़े पहने, हम आपके जैसे दिखें, हमारा खाना पीना से लेके सब कुछ आपके जैसा हो, तब हम जाके आपको जगह देंगे। तो मसलन जब भी कभी बात आती है कि एजुकेशन की, तो जो जो लोग पावर में है उनसे कहा जाता है, कहते हैं नहीं देखिए मुसलमानों में महिलाओं की शिक्षा की बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाओं की शिक्षा की प्रॉब्लम तो सब समाज में है। कौन सा समाज आप बताइए जिसमें आप कह सकते हैं कि जो है जेंडर इक्वालिटी एकदम बराबर है, जेंडर राइट सारे बराबर हैं। तो आप उम्मीद उनसे कर रहे हैं। ये तो वैसा ही हो गया कि जब आप रेफ्यूजी राइट्स की बात कर रहे हो तब आप उनसे कह रहे हो कि हम आपके रेफ्यूजी राइट्स तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब आप वहाँ पे सेक्स रेशियो आपका बराबर होगा, जहाँ आपके समाज में जो है सारी इक्वालिटी होगी, सब कुछ होगा। तो ये तो तब होगा जब हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब जाके हम उस चीज को एड्रेस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का इश्यू नहीं है, उन लोगों का इश्यू है जो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। करेक्ट। मैं इसी में ही कुछ ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आपने सचर कमेटी के बारे में बात करी। आई थिंक बहुत लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज किया था कमेटी के बारे में कि देयर वाज नो वुमेन ऑन द पैनल, नो मुस्लिम वुमेन और अ वुमेन ऑन द पैनल whosoever came up। बट हम ऐसे भी उसमें बात कर सकते हैं कि जब ये क्रिमिनल लॉस का रिव्यू, द कमिटी वाज formed to basically come up with reforms in the CRPC and IPC, they were all upper caste men, to be precise Hindu upper caste men,
There was no woman, there was no Muslim, there was hardly any representation. So ऐसे तो criticize करने के लिए we can pinprick everything and anything. देखिए एक चीज है But क्रिटिसाइज करना, आप उनको हाँ, क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बारी आएगी तो आप हमेशा correct, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बात करोगे, आप correct, हमेशा एक correct, दलित वुमेन की बात करेंगे, आप हमेशा एक आदिवासी वुमेन की बात correct, करेंगे, आप कह रहे हैं कि आप correct. आदिवासी समाज को मेन स्ट्रीम में आना है तो उनको पहले हाँ, महिलाओं को बराबर दर्जा देना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में लोग हैं उन्होंने ये दर्जा दे दिया है, ऐसा नहीं है ना। correct, और correct. दूसरा बात सचल कमेटी है, सचल कमेटी में मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आपकी बात सही हो सकती है, मुझे ये चीज अवेयर नहीं है, बट आई जोया, प्रोफेसर जोया हसन और एक और मोहतरमा थी, दे वर पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन, लेकिन उनसे भी ये प्रॉब्लम कह सकते हैं कि वो भी विद इन मुस्लिम्स आल्सो, आप देखिए कि जो कास्ट का जो एक फिनोमेना है उसको जो हमारा लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। आर्टिकल 341 में इंक्लूजन के लिए मुस्लिम दलित की जो बात हो रही है उसको किया ही नहीं जा रहा है लार्जली। इनफैक्ट सचल कमीशन की अपने आप में ये कहता है कि उसको एक नया फॉर्म कह सकते हैं जिसको एमबीसी या ईबीसी कह सकते हैं, लेकिन वो उसको, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है वो शेड्यूल कास्ट को एक बहुत ही डिफरेंट अफर्मेटिव एक्शन देती है। Correct. बात सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक पॉलिसी है जो दैट इज मेंट फॉर शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स, वो ये कहती है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी या गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्टेट्स करेगी उसमें देयर हैज टू बी अ शेयर ऑफ दलित एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है दलित एंटरप्रेन्योर्स की हैं उनका उसमें शेयर होगा। तो क्या कल एमबीसी का जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन हो जाएगा उससे किसी इसी तरह की स्कीम को एनविसाज कर सकते हैं? नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सॉल्यूशन टू एवरीवन, तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरा जो है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, साल या 1-2 साल पहले एक स्टडी था, एक थिंक टैंक ने स्टडी किया था कि 2 पर्टिकुलर तरीके की सीवी, एक जैसी सीवी, सब कुछ एक जैसा, उसमें नाम, एक का नाम प्रियंका शर्मा था और एक का नाम एक मुस्लिम लेडी का था। उन्होंने वो डिफरेंट जगह भेजा था। जो हिंदू वुमेन का जो एक्सेप्टेंस रेट था 40%, 41% था, और जो मुस्लिम वुमेन का एक्सेप्टेंस रेट था वो तकरीबन 11% था। तो आप ये भी डिफरेंस देखिए, इसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है। माने सूरत में एक डायमंड मर्चेंट एक मुस्लिम एमबीए स्टूडेंट को, एमबीए ग्रेजुएट को लिख देता है कि हम तो एज अ पॉलिसी स्टैंड वी डू नॉट हायर मुस्लिम्स, तो उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है। या दूसरा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कल अगर कोई मुझे आके मेरे रिलीजन की बेसिस पे या मेरी आइडेंटिटी या मेरे फेथ के बेसिस पे मुझे वर्बली इंसल्ट करता है, तो उसके लिए कोई लॉ ही नहीं, उसको एड्रेस करने के लिए कोई लॉ ही नहीं है। जो एक बहुत सारा वैक्यूम है लॉ और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद लॉ जाने से सब कुछ बदल जाएगा। एक जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटी में एक जो दिमाग में उनके एजेंडा है कि वो कहीं ना कहीं दिखता है। आप देखिए हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है, मैंने खुद ने पिछले 5 से 6 साल से स्टडी किया है इस चीज को पर्सनल लेवल पे। वो हमेशा 28 से 30 या 25 से 30 लोगों का उसमें सिलेक्शन होता है, क्योंकि लार्जली 3% है। और ये डेटा 20 सालों से इंटैक्ट है, 3% से ऊपर उसको कभी नहीं आने दिया गया। और डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स कम होने चाहिए, आपके जो मार्क्स हैं वो लार्जली मेरिट बेस्ड होना चाहिए। हालांकि आई डोंट बिलीव इन मेरिट, लेकिन जो आइडिया है कि अगर आप इंटरव्यू में इतना ज्यादा वेटेज दोगे तो उसका जो फाइनल आउटकम होगा वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। इनफैक्ट अब्दुल नाफे कमेटी है जो जेएनयू में, उन्होंने एक रिसर्च किया था कि इंटरव्यू के मार्क्स और आपके मेन जो रिटन एग्जाम के मार्क्स हैं वो आपकी आइडेंटिटी से किस तरह अफेक्ट होते हैं, और वो बहुत ही डिस्टर्बिंग डेटा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको भी एड्रेस करना ही नहीं चाहती। तो ये आप थोड़ा इसके बारे में और बताएंगे? ऐश्वर्या, एक क्वेश्चन है, नसीर हैज आस्क्ड, आई थिंक एक क्वेश्चन है ना नसीर, मैं पढ़ देती हूँ। लेटली सुप्रीम कोर्ट केम अप विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डॉक्ट्रिन, वेयर डू यू सी द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी विज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? What will be its impact on freedom of religion of minorities? I think it's for you, Drish. You may want to address it. मैं थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से समझना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो नसीर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और आप बता सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ऐसे था कि पिछले साल जब सबरीमाला जजमेंट आई थी और बहुत सारी जजमेंट आई थी सुप्रीम, जैसे वो जोसेफ शाइन जजमेंट आई थी, उनमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन लाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उसमें ये कहा कि वी हैव मोरालिटी, वी हैव आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी।
मगर जब हम देखते हैं विजाज में रिलीजियस राइट्स, जैसे माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का मसला है, कल इनहेरिटेंस का मसला होगा, उसके बाद डाइवोर्स का मसला है, इस तरह से मतलब बहुत सारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो अभी तक चल रहा है, हो सकता है कल जो मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर से आ जाएगी और कहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये बोल रही है, मगर जो रिलीजियस मोरालिटी वो कुछ अलग बोल रही है। मिसाल के इनहेरिटेंस लॉ जो मुस्लिम का है वो अलग है। अब कल सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हमें लग रहा है इसमें इनइक्वालिटी है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सामने रखते उसको खत्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डॉक्ट्रिन डेवलप हो रही है। आप जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो राइट्स है, माइनॉरिटीज के जो मतलब पर्सनल लॉज है, इस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मैं आई एम नॉट श्योर मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से किसी चीज को आंसर करूँ, लेकिन अगर मैं फिर भी बहुत छोटे से लेवल पे इसको कहूँ, एक शिफ्ट है हर चीज में। आपके देश में जो पॉलिटिकल अफेयर है वो कहीं ना कहीं आपके लॉ के इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करता है। आप अगर थोड़ा सा 56 या 60s में जाएंगे तो उस दौर में लिबर्टी का बहुत ज्यादा था, अरेस्ट को लेके बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ करता था कि नहीं आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए, आपको अगर अरेस्ट कर भी लिया गया तो इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाना चाहिए। वो शिफ्ट बहुत बदला है 70s में। जो कानू सान्याल और चारू मजुमदार वाला एक जजमेंट है वो ये कहता है कि नहीं अरेस्ट किया जा सकता है। फिर 70s में जो एडीएम जबलपुर का जजमेंट है वो तो ये कहता है कि इमरजेंसी के टाइम में किसी के पास राइट है ही नहीं, माने आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 वो भी आपसे छीन लिया जाता है। हालांकि तो कहीं ना कहीं आपका जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो उसको करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो बात है ये अपने आप में कोई एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैं किसी नजरिए से समझ सकता हूँ, आप किसी नजरिए से समझ सकते हैं, और कोई तीसरा इंसान किसी तीसरे नजरिए से समझ सकता है। सबरीमाला के जजमेंट में उन्होंने जो पहला जजमेंट दिया था वो ये था कि महिलाओं के पास अधिकार है, इनइक्वालिटी का मसला है, या जो भी उन्होंने उस चीज को आगे खींचा था। उसमें माइनॉरिटी जजमेंट जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा का था वो ये कहता था कि रिलीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खासकर जब दूसरे मजहब के जो जजमेंट्स हैं उसमें उन्होंने कहा कि नहीं फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं आप ये इजाजत देता है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता, कि इक्वालिटी के खिलाफ है, या फेथ जो है वो आपके राइट से बढ़ के नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हमें 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 अभी बहुत कुछ देखना है। मैं शायद इतना ही कह सकता हूँ, हमें बहुत कुछ देखना है अभी। It's really difficult to answer this question, but I think I would sum up with this, that good or bad yet to come. Thank you, Idrish. और मेरा भी एक सवाल था, what I was trying to understand from what you guys were discussing about कि हम समझ रहे हैं कि कुछ गैप है और अभी बहुत चीजों को एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म्स हैं ही नहीं काफी, बट क्या ऑलरेडी कुछ है, और अगर कुछ है तो वो क्या है, एंड वेयर कैन वी गो आफ्टर दिस? मतलब ऑलरेडी कोई मैकेनिज्म है और उसको हम कैसे एक्सेस करें अगर करना चाहें, और वो किस चीज के लिए, और व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू एज इफ वी हैव टू वर्क इन दिस फील्ड? आपकी आवाज गायब होगी शताक्षी, मैं माफी चाहूंगा, आप अच्छा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, हम ये बोल रहे थे आवाज बहुत कट रही है। अभी आ रही है क्या ठीक से? अभी बेटर। अभी भी कट रही है? अच्छा ठीक है। नहीं हम बस ये पूछ रहे थे इद्रिस से कि आप जब बता रहे थे कि देयर आर सम मैकेनिज्म्स डेफिनेटली जो लैक करते हैं, मतलब लॉज हैं जो है ही नहीं, बट क्या ऑलरेडी कुछ है, और अगर वो है कोई मैकेनिज्म या लॉ तो इन टर्म्स ऑफ माइनॉरिटी राइट्स तो वो क्या है, हाउ डू वी एक्सेस इट, और आगे कहाँ जाना चाहिए हमें इससे, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट अगर हम इसी फील्ड में काम करते हैं और हम राइट्स की बात करते हैं, तो if we have to go from the law perspective? देखिए, अगर जैसे मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, जो अगर फंडामेंटल राइट्स को आप पढ़ेंगे 15-16 जो आर्टिकल है वो स्पेसिफिक कहते हैं कि आपके जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सोशल बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है, उनके लिए आप लॉ बना सकते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऑलरेडी इजाजत देता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि
जब 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 बात आती है कि मुस्लिम्स एज अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए क्या किया जा सकता है, तो बहुत एक्सट्रीम मेजर नहीं डेवलप किया गया, कुछ मतलब जिसको हम कहते हैं ना लीपापोती का काम बहुत ज्यादा हुआ। सच्चर कमेटी ने माना है कि मुसलमानों में कास्ट एग्जिस्ट करता है, इंडिया के मुसलमानों में कास्ट है, कास्ट प्रैक्टिस होता है, और कास्ट से कहीं ना कहीं उनके लाइफ में फर्क भी पड़ता है। करेक्ट। उसके बावजूद जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, इफ यू डोंट माइंड। आई एम सॉरी इफ I mean, I have seen through the cases that I have, I mean, before the court only, there is a stark difference that you can see that if a woman from a Muslim community, two women from the Muslim community, one is from lower strata and one is from the upper strata, the way they are being treated by lawyers and the way it's very different. उनका जो access है for the legal help बहुत अलग है। Like he rightly pointed out that there is a caste difference. I do have clients who from the lower strata, Muslim women, how they are treated by the judges themselves, it's very different. It's a very sad story, but that's how it is, and I hope it changes over time. I can only hope for it. Yeah, please Idrish, please continue. हाँ, तो खैर मैं उसी चीज पे आ रहा था। दूसरा ये है कि अगर मैं अगर किसी का कोई सोल्यूशन देखना चाहूँ, तो सोल्यूशन बहुत सारा सोल्यूशन जो है वो आपके रिप्रेजेंटेशन में है। आपके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है उन्हीं के अराउंड रह जाता है, जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके इर्द गिर्द कभी नहीं आता। मतलब मुझे नहीं पता अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पिछले 20 सालों में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर कभी बात की हो, या कभी किसी ने किसी एक अटेम्प्ट किया गया हो। और खासकर अभी अगर आप देखिए तो कल या परसों ही कर्नाटका ने जो मुस्लिम रिजर्वेशन था उसको खत्म किया, और जो उनके शेयर का रिजर्वेशन था दूसरी कम्युनिटीज को दिया। जैसे जो पॉलिटिकल गिमिक, कल अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो उसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि जो दूसरी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन उन्होंने एडिशन दिया है उसको उन्होंने वापस से छीना है। तो उन्होंने इसको सिर्फ खत्म नहीं किया है, वैसे थोड़ा सा एक बहुत ही विजनरी काम किया उन्होंने। मान लीजिए अगर वो सिर्फ खत्म करते तो शायद कल कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो शायद उसको चेंज कर देगी, लेकिन खत्म नहीं किया, उसको दूसरों को दे दिया गया ताकि उनसे वापस नहीं लिया जा सके, और एक पॉलिटिकल जो है अनस्टेबिलिटी की कगार पे ऐसी चीजें आ सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि जिनको दिया गया उन्होंने मांगा ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये क्यों किया गया है। इसके बावजूद अगर आप देखिए, मतलब मैंने जितना मैं पब्लिकली अवेयर रहता हूँ, पिछले कितने ही वक्त में किसी भी पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई भी क्रिमिनल सूट या क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं किया गया है for their intention to defame, for their intention to making Muslim more marginalized to their statements। या कोविड का पूरा जो आप दौर देखिए किस तरीके से मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया गया कि कोविड फैलाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। तो गवर्नमेंट का भी अपना एक एटीट्यूड दिखता है, चाहे सक्सेसिव गवर्नमेंट। और अगर एक सच्चर कमेटी को मैं नए नजरिए से देखूं, सच्चर कमेटी तकरीबन 2006 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, 2004 में मनमोहन सिंह ने जब इसको बनाया था। सच्चर कमेटी का कहना है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से खराब है। तो उनका जो असेसमेंट है वो 1950 से शुरू होता है, 1950 से लेके तकरीबन अर्ली 2000 तक। तो कहीं ना कहीं आप बहुत क्लैरिटी से इसको समझ सकते हैं ना कि जो 70 या 50 ईयर्स या 55 ईयर्स तक जो भी गवर्नमेंट रही है उसने उनके लिए कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, इससे वो और ज्यादा मार्जिनलाइज हो गए। एक मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है कि कांग्रेस ने एज अ मैटर ऑफ तुष्टीकरण या अपीजमेंट जो है मुसलमानों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाए या मुसलमानों को बहुत आगे पहुंचा दिया। सच्चर कमेटी इसका जवाब आपको दे रही है ना। तो आप क्या कहते हैं एज अ सच्चर कमेटी आपको ये कह रही है कि मुसलमानों की स्थिति तो दलितों से खराब होगी, तो इसका मतलब तो कांग्रेस ने का जो एक रूल रहा है पर्टिकुलर टाइम में उसने उसको और ज्यादा मार्जिनलाइज किया। So what do you think through the role of advocacy, how we can bring about awareness and
make people aware about minority rights through the medium of advocacy and legal aid. तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम कर सकते हैं to make people more aware, not just for the minorities, for everyone all around? देखिए, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में सिर्फ एक ही जगह उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा है, और वो है जेल। मैं एक एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड डेमोक्रेसी फेलो मैंने जोधपुर जेल में काम किया था, और जेल को छोड़ के मुझे आज तक एक भी ऐसी जगह नहीं मिली है जो जहाँ पे वो 14% से ज्यादा हो, सिर्फ जेल ही एक ऐसी जगह। तो दिस इज एन आंसर दैट हाउ जुडिशरी थिंक्स, कि जुडिशरी कैसे जवाब देती है। क्या जुडिशरी के पास रेगुलर डेटा आता है कि आपके जेल में कितने तरीके के लोग हैं, कितने टाइम से लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, किस फेथ के लोग हैं। उन्होंने भी इस चीज को एड्रेस करने की, मुझे नहीं पता, कोई कोशिश की हो तो आई माइट बी अनअवेयर, बट इम्प्लीमेंट तो आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो एडवोकेसी को एक टूल समझ लेना, मतलब मैं बहुत, हो सकता है मेरी बातें बहुत डिप्रेसिंग लग रही हो कि वहां पर भी सॉल्यूशन नहीं है, वहां पर भी सॉल्यूशन नहीं, आप डिप्रेसिंग बातें नहीं कर रहे, आप रियलिटी बता रहे हैं, आप रियलिटी बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि नहीं है तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात है। करेक्ट, लेकिन but one can always hope, even though hope is a malady, but one can always hope that hopefully it does get better. So on that note, is there anything at all you think that as we grow, as we move forward, as we grow as a society, you as a lawyer, what do you see for the minority rights, just for the legal perspective, from the legal perspective? देखिए, मैं जब पहली बार लंदन आया था तो कुछ मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया था। उस ट्रेजेडी में मैं जब ट्रैवल कर रहा था, मेरे पास में एक ऑस्ट्रिया के एक इंसान बैठे हुए थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि यू डोंट लुक वेल, तो मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो वगैरह वगैरह। तो तकरीबन 3.5 घंटे के सफर में मेरी उनसे बहुत तफसील से बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि ही इज अ ज्यू, एंड उनके जो फैमिली थी वो उस वक्त की जर्मनी में थी। उन्होंने एक बात कही थी और मैं कहीं उससे एग्री करता हूँ कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल रीजन में जहाँ पे परसिक्यूटेड एंड नॉन परसिक्यूटेड कम्युनिटी साथ रहती, और परसिक्यूटेड जो कम्युनिटी है वो कम नंबर में माइनॉरिटी में है, वो कभी भी इस वजह से होपलेस नहीं होती है कि उन्होंने लड़ाई कम की है या उन्होंने एक स्ट्रगल कम किया है। वो होपलेस तब हो जाती है जब उनको लगता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो उनके लिए लड़ना बंद कर चुकी है। करेक्ट। इंडिया में जो मेजॉरिटी नहीं, जो मेजॉरिटेरियन, जो बहुसंख्यकवादिता का जो एक सिद्धांत है, बहुसंख्यकवादिता अगर एक इक्वालिटी की लड़ाई करना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि होप वहां पे खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने लड़ाई नहीं की, सब लोग ही जो मेन स्ट्रीम जो आर्ग्यूमेंट होते हैं कि मुसलमानों ने कभी अपने लिए स्ट्रगल किया ही नहीं, वो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो खुद तो बढ़ना ही नहीं चाहते, वो कॉलोनी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, उनको वो कचरा ही पसंद है। आपने क्या किया? आपने अपने घर में किसी को रखने के लिए पनाह दी है क्या आपने कभी ये अपने से आगे से जाके अटेम्प्ट किया है कि मैं अपना घर एज अ पार्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन सिर्फ किसी मुस्लिम को रेंट पे दूंगा क्योंकि दूसरे लोग नहीं देते? करेक्ट। आपने अपने एम्प्लॉयमेंट की बात आई तो आपने कभी ये सोच के किया है कि एज एन अफर्मेटिव एक्शन मेरे अगर बस में कोई एम्प्लॉयमेंट है तो मैं उन लोगों को दूंगा जो बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं? आप ये चीज आप थोड़ा सा यूरोप में देखते हैं। यूरोप में इनका एक अटेम्प्ट रहता है कि वो कहते हैं कि हम जो है प्रिफर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेस या अलग अलग जो वल्नरेबल बैकग्राउंड्स हैं। अब प्रैक्टिस में कितना है उसकी अपनी स्टडीज हो सकती है, मैं यहाँ का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये एक अटेम्प्ट मैंने देखा है। इंडिया में ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है, ना डाइवर्सिटी की कोई बात होती है। जैसे है जो स्थिति है वो है एडवोकेसी का। अगर आप एक इम्प्लीमेंटेशन लेना चाहें, जुडिशरी पे बहुत ज्यादा फेथ था। आप अगर ओवर द टाइम्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो आपको कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम सिटीजन जो है आपको जुडिशरी को बहुत कम क्रिटिसाइज करता हुआ मिलेगा, क्योंकि एक लंबे अरसे तक उनका भरोसा था या है या रहा है। अगर मैं आज की बात नहीं करूं, आज से पहले की बात करूं तो भरोसा था। अब क्या बदलाव आ रहे हैं? मेरे ख्याल से उसके लिए वक्त आ रहा है। आप देख रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट है, सिद्दीक कप्पन एक जर्नलिस्ट है। अर्णब गोस्वामी को 2 दिन में जमानत मिल जाती है,
सद्दीक अप्पन को 2 साल Correct. वेट करना पड़ता है। Yes. और यहाँ तक कि जब लगभग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उनका एक ऑर्डर आया, उसको एग्जीक्यूट कराने में उनको लगभग 2 महीने लग गए। 2 महीने, yeah. बेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने में 2 महीने लग गए। मुझे नहीं पता कैसे लगे हैं, लेकिन वो एक सोचने की बात है। If the solution has to come, the solution has to come from those who prosecute you, not from those who are prosecuted. Yeah, yeah. And those who are sitting in the powerful positions. I wouldn't say that. I wouldn't say that. I think I mean, they are powerful. पावर में वही लोग हैं जो मेजोरिटेरियन Correct. Yes, of course. Yeah. Any questions for Idrish? Anything at all that anyone wants to participate and कुछ कहना चाहता है कोई, जो भी हमारी लीगल पर्सपेक्टिव में लेके बातचीत हुई है? Khairun ji has a question. Go ahead, Khairun ji. सवाल नहीं है मेरा, मतलब जो मैंने इद्रिस की बातें सुन रही थी मैं, जैसे कि हमारे अपने अनुभव रहे हैं, तो मैं उसी पे से थोड़ा मतलब बात ये एक थी, 2 चीजें जोड़ना चाहती थी। जैसे कि उन्होंने बात की कि जब भी कोई आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं तो कहते हैं विमेंस के इश्यूज को सही करो, है ना। और एक पॉलिटिकल जो प्रेजेंटेशन है उसकी बात की उन्होंने। सैचर कमेटी की हम जानते ही है कि इतने साल तक कांग्रेस के शासन रहा और कांग्रेस ने ही ये रिपोर्ट बनवाई और 2006 और 2007 में उन्होंने सैचर कमेटी की बात की, और जिसमें अभी कहा गया कि महिलाओं का उसमें रिप्रेजेंट नहीं रहा। तो मतलब 2-3 मुद्दे जैसे कि हम देखते हैं कि जब से ये सरकार आई है ना, तब से थोड़ा सा हाँ, ये टोटली मैं एग्री करती हूँ कि वो डिस्क्रिमिनेशन और माइनॉरिटी को दबाने की सीधी बात हुई है ना। बट जो महिला के इश्यूज है वो इन हाउस खत्म किए जा सकते थे जब इस 2014 से पहले भी, वो फिर ट्रिपल तलाक का इश्यूज हो, हलाला का हो या इज्जत का हो, तो वो इश्यूज नहीं खड़े हुए, मतलब खत्म हुए, और बहुत बार इस पे बात भी हुई है। और ये जो इंटरनल लॉ, सरिया लॉ है, तो उसमें जो चीजें थी उसको नहीं बदला, और इस सरकार ने पॉलिटिकल अपना क्रेडिट पूरा ले लिया कि वो मुस्लिम महिलाओं की मसीहा है और वो देखो उनका कितना ध्यान रखती है, क्योंकि उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। बट महिलाओं की स्थिति ये भी है कि जिस तरह एक्सटर्नल वायलेंस बढ़ता है वैसे इंटरनल पेट्रियार्की बहुत मजबूत होती है। तो महिलाओं के लिए कभी टाइम नहीं होता कि वो कब बोले और कब नहीं बोले। और जैसे कि कहा कि आदर्श समाज की बात करते, तो फिर हम अभी ऐसे कह रहे हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल इशू है उसको खत्म करो, तो फिर हम अपने इंटरनल इशू को क्यों पहले खत्म नहीं कर रहे, ताकि पेट्रियार्की मुझे लगता है जितनी कमजोर पड़ेगी उतनी जो बाहर की लड़ाई है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। बट हमेशा महिलाओं के मुद्दों की बात आती है तब हमेशा ये रखा जाता है कि भाई आपके मुद्दे बाद में लिए जाएंगे। तो इतने सालों से ये मुद्दे चले आ रहे हैं, तो उन्हें ये ठीक करना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि 2000 मतलब पिछले कई वर्षों में 40 सालों के अंदर पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन मुस्लिम MLAs हो या उनका नहीं रहा, वो रहे, बट उन्होंने कभी भी इन इश्यूज को नहीं उठाया। और आप शाहबानो के इश्यूज को जानते ही होंगे, तभी भी मतलब ये हम इंटरनली हमारी यही रही है कि हमें इंटरनली आज हमारी जो दिक्कतें बढ़ रही है, तो हम गेटोज में हो गए, और हमारे इंटरनल चैलेंज और एक्सटर्नल चैलेंज दोनों साथ में हो गए, और जो हमारी आइडेंटिटी है उसको लेके हमें हर किसी को फेस करना पड़ रहा है। बट महिलाओं का स्थिति को हम कभी भी इस तरह से सिर्फ कह के अभी माहौल खराब है और महिलाओं के इश्यूज को नहीं देखना चाहिए या उसको बाद में देखना चाहिए, तो इससे पहले अगर माहौल नहीं खराब था तो उसको ठीक किया जा सकता था। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्लीज। हाँ, और सेकंड पॉइंट ये है कि सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उसके बाद भी मुसलमान समाज ने, हम जानते हैं कि सरकार बायस है, तो हमने भी उन कामों में करने के लिए
हम हमारे इंटरनल समाज में हम देखते हैं कि ज्यादा स्कूल और ये वो नहीं बनाए जाते, सारे ही जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ 10 लाख का पॉपुलेशन है, वहां पर खाली 5 स्कूल है। तो हमें पता है कि यहाँ स्कूलों की ज्यादा जरूरत है, तो हम खुद भी तो नहीं बना रहे। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टी है, सेकंड लार्जर प्रॉपर्टी है वो। तो हम कभी भी उसको, हम साक्षर कमेटी ने ये बात कही है कि उसको ठीक से मतलब किया जाए वक्फ की जो प्रॉपर्टी है। तो मुझे उन्हें मुसलमान को शायद कोई बजट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी वो काम नहीं हो रहा। तो ये तो जिसके हाथ में पावर है वो इंटरनली वो एक्सटर्नली वो अच्छे से यूज करता है। तो ये बहुत क्लियर है। और सिविल सोसाइटी कभी भी ऐसे आइडियल नहीं कि ये ठीक करके आओ। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, बट मैं आपको कहती हूँ कि जो मेरा परिवार है और मेरे परिवार जैसे 1000 परिवार 100 परिवार थे जो बचे हैं आज के दिन जिंदा है 2000 के दोपहर, उनको हिंदुओं ने ही बना दी थी और वो उन्हीं की वजह से बचे। तो हमें ये भी कहना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कहना चाहती कि एकदम ही ऐसा है, और लोग बोलना चाहते हैं। और आज भी हमारी जो पैरवी करते हैं, तो आज हमारे बहुत सारे साथी हैं जो नॉन मुस्लिम है, उनके साथ ही रह के हमें काम करना पड़ रहा है। तो हम एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि सिविल सोसाइटी कुछ काम नहीं कर रही। मुझे लगता है कि जितने ही सवाल उठा रहे हैं वो सिविल सोसाइटी ही उठा रही है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को देखना चाहिए। हम एक ही तरह से देख रहे, तो मतलब हमारी खुद की जिम्मेदारी क्यों क्या हो, और फिर हम भी क्यों महिलाओं के इश्यूज पे आके रुक जाते हैं। हमारे महिलाओं के अलावा हमारे एजुकेशन, अपना एम्प्लॉयमेंट, बेसिक सुविधा और भी तो हमारे सवाल है। पर एक्सटर्नल और इंटरनल लीडर्स है वो यही काम कर रहे हैं कि मुस्लिम विमेन के इश्यूज पे ही हसन जी का भी कुछ If I can answer like in 1 minute. Yes, Idrish, yes. See, I never said कि महिलाओं के इश्यू पहले सॉल्व नहीं होंगे या बिल्कुल उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन है। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, पैट्रियार्की मुसलमानों में भी है, पैट्रियार्की हिंदुओं में भी है, पैट्रियार्की पंजाबियों में या सिखों में भी है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में बात कहूँ कि जब हम एज अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मुसलमानों को देखते हैं, तो विद इन मार्जिनलाइज्ड जो है, जो महिलाएं, उनकी स्थिति और बदतर है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई आर्ग्यूमेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये बात करते हैं कि फर्स्ट विल एड्रेस दिस थिंग और सेकंड विल एड्रेस थिंग, ऐसा नहीं होगा। चीजें सारी एड्रेस होगी, एक साथ उसको एड्रेस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो मुस्लिम महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखिए टिकट देने में हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती है उसमें हमेशा से ही मुझे लगता है कि कोई रेयर केस होगा जब किसी मुसलमान का बहुत बड़ा रोल होगा, तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया? ऐसा तो नहीं था कि कोई कैंडिडेट ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी एक पैट्रियार्की को प्रैक्टिस किया गया है ना विद इन मुस्लिम्स, कि जब अगर विधानसभा लोकसभा की टिकट देने की बात थी, उनसे पूछा जाए कि आपने कितने प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया है, या आज भी मुसलमान महिला सांसद कितनी है संसद में। आप ये जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक को लेके ये सारा काम किया है वगैरह, उनसे पूछिए कि आपने कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया है, या आपका नगर पालिका से लेके संसद तक आपके कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपकी पार्टी से हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं। पर दूसरा हम जानते कि जी बताइए। नहीं आप कंटिन्यू। दूसरा जो एक सेल्फ ब्लेम की बात है ना, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में जो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो इसलिए आगे नहीं है क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है बहुत ज्यादा। वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपनी जो पॉलिसी है वो अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करके बनवाते हैं, तो उनको अपने को अलग से कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो उनको एक प्लेट में सब कुछ मिल जाता है। तो ये कहना कि देखिए, मैं खुद वक्फ बोर्ड का वकील रह चुका हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे बहुत लंबे अरसे से कब्जे मतलब किसी का ऑक्यूपेंसी था, उसको खाली करवाने के लिए कुछ लोगों ने मुस्लिम लोगों ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को लिखा और बहुत दबाव बनाया। चेयरमैन साहब भी राजी थे कि नहीं, ये प्रॉपर्टी खाली होनी चाहिए, इसकी जगह में एक हॉस्टल बनाएंगे जो कि आगे काम आएगा। अब मसला ये हुआ कि जो लोग उसमें सारे टेनेंट्स थे
उसमें कुछ मुस्लिम थे, कुछ नॉन मुस्लिम, ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स थे। वो गए सीएम के पास, उन्होंने कहा कि देखिए हम इस प्रॉपर्टी पे लंबे अरसे से व्यापार कर रहे हैं, अगर आपने ये खाली कराया तो ये ठीक नहीं होगा, हम आपको फंडिंग नहीं देंगे, आपको चंदा नहीं देंगे। तो उन्होंने सीएम साहब ने फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को ये कहा कि इस प्रॉपर्टी को आप थोड़ा सा रहने दीजिए, आप किसी और जगह काम कर लीजिए। तो ऐसा कह देना कि मुसलमान जो है उनके पास कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पूरी ताकतें हैं, पूरे राइट्स हैं, वो भी गलत है। उनके पास जो राइट्स, उनको सो कॉल्ड राइट्स भी दिए गए हैं, उनके ऊपर एक सुपरवाइजरी पावर है कहीं ना कहीं। आप कहीं कहना कि स्कूल क्यों नहीं खोले गए हैं, मेरा रादर स्कूल के बजाय ये सवाल हो सकता है कि जिस तरीके से संस्कृत बोर्ड को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने मदरसा को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? कौन सा ऐसा लॉ है जो कहता है कि अगर आप पहली दूसरी से लेके 12वीं तक पढ़ेंगे तभी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और तभी आपके पास ज्ञान होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद 8 साल मदरसे में पढ़ा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो वहाँ का ज्ञान मिला वो भी आज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, और बहुत सारा जो स्कूल का ज्ञान था वो भी मेरे लिए यूजफुल नहीं। तो उसको भी क्वेश्चन नहीं की। ज्यादा से ज्यादा बात आती है कि हम मदरसा मॉडर्नाइज करेंगे। मदरसा मॉडर्नाइज में क्या होता है कि उसमें 2 कंप्यूटर लगा देते हैं, 4 दरियों का पैसा दे देते हैं और 20 कुर्सी का पैसा दे देते हैं। ये मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ही हो रहा है। मेरे खुद के टीचर थे अत्याग सिद्दीकी साहब, उन्होंने इसको पूरा स्टडी किया था, उनकी एक अलग अपनी रिपोर्ट भी है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि पहले मुसलमानों का एज अ मुसलमान इश्यू सॉल्व होगा, फिर हम विद इन जो मुस्लिम महिला का सवाल है या जब ट्रांसजेंडर का सवाल है या दूसरे जो विद इन जो इंटरसेक्शन कम्युनिटीज हैं उनका सवाल सारे साथ में सॉल्व होंगे। जो मेरा सवाल था सिविल, आप कह रही हैं कि सिविल सोसाइटी से, मैंने ये कभी नहीं कहा कि सारी की सारी सिविल सोसाइटी ये कहती है कि, या फिर मैंने जब जो वर्ड लिया था यूज, मैंने उसमें मेजोरिटी नहीं कहा था कभी भी, मैंने कहा था मेजोरिटेरियन, बहुसंख्यकवादिता। यानी कि जो लोग जो इस चीज को डोमिनेट करते हैं वो आपसे आके एक सवाल करते हैं कि देखिए ये इश्यू तो है लेकिन आपके यहाँ ये इश्यू बड़ा है, ये तो इश्यू है लेकिन आपके यहाँ ये इश्यू बड़ा है। मसलन जैसे मैं जिस कॉलोनी में रहता था, या आज तक की कहीं बता दे रहा हूँ, मेरी कॉलोनी में पानी नहीं आता है। तो अभी ईद वापस आने वाली, पिछली ईद पे ये कंडीशन था कि पानी नहीं आता, तो हम कहीं से पानी लेके आए थे ताकि ईद के दिन नहाने धोने में या जो भी दिक्कत है वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आपके जो इश्यूज हैं, sorry Idrish, we are short on time. I'm really I'll just take sorry. 1 minute and finish this. Yes, please. Okay. तो मैं as a Muslim man, I take full responsibility कि पेट्रियार्की मेरी वजह से है। मैं उस चीज के लिए माफी भी मांग सकता हूँ और मांगता हूँ, और मैं ये भी करने को तैयार हूँ कि जो मुझसे कहा जाए कि आप ये कीजिए, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझसे कोई आके कहे कि you will be given right when you will address all these questions within yourself, जो कि बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है और मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, so that would be something unacceptable. You can do both of the things at the same time, but you cannot address one question, or you cannot do कि पहले तुम ये ठीक करके फिर हम तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगे. So yeah, that is. I think Hassan has something to participate. So please go ahead. We are short on time, so I'll keep it short. But I just want to add one incident. Actually, I agree with you, Idris, on many things. First of all, thank you so much. I haven't heard a single sane discussion on this subject in a while. So thank you so much for this, for organizing this, and all of the team. Like, congratulations, good job. There was something that I want to share from my background. I'm from Kota, Rajasthan. कोटा नाम का शहर आपको पता होगा. तो वहाँ पे एक छोटा सा एरिया है घंटागढ़ नाम का, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है. और उस एरिया के अंदर मैं जब पढ़ा हो रहा था तो मुझे तो कोई डिफरेंस लगा नहीं कि एरिया वैसे कुछ अलग है बाकी एरिया से, क्योंकि मेरे लिए तो वो घर था. पर जब मैं एक्चुअली उस एरिया से बाहर निकला और कुछ टाइम बाद मैंने स्टडी किया, तो पता लगा कि इस एरिया के अंदर काफी लोगों को जॉब्स नहीं मिलते हैं. काफी लोगों को जो इस एरिया से आते हैं, उसके स्पेसिफिक रीजंस तो जो है कि वो मुस्लिम गेटो है एंड ऑल ऑफ दैट. बट देयर इज अ लार्जर इशू जो आई थिंक मुझे भी नहीं पता था, और मेजॉरिटी लोग जो वहां रहते हैं उनको भी नहीं पता, कि जब 92 के दंगे हुए थे तो वहां पे उस टाइम पे एक सेक्शन 374 लगाया गया था, जिससे कि आप असेंबली नहीं कर सकते ज्यादा लोगों के साथ. एंड वो उसके ऑर्डर में लिखा गया था कि अंटिल फर्दर नोटिस दिस शुड बी अप्लाइड. बट वो फर्दर नोटिस कभी आया नहीं एक्चुअली. तो आज 2023 में भी वो सेक्शन 144 लागू है वहां पे उस एरिया में पर्टिकुलरली, एंड वो किसी को नहीं पता. इट्स नॉट एन ओपन थिंग, बट लीगली दे कैन गो एंड डिटेन एनीवन व्हेनेवर दे वांट, बिकॉज देयर इज सेक्शन 144 ऑल constant. So those kind of things are very invisible to actually see for people. Like, this is a very my question is actually
around that topic as well, I have came across this organization called Bebak Collective, if you are aware of them, from Mumbai. Hasina Khan runs this organization, and they have published a report about the mental health of Muslims in India. And they have done something really amazing, which is basically quantization of the problem itself. Like, how do we measure the impact of this that we are looking at? Like, how do we measure that? And I think I want to ask you that question again, like, what kind of places we need to actually look into to actually collect that kind of information, so we can understand the problem to its complete extent, like deeply. मैं आपका मैं सवाल बेबाक बहुत प्रिसाइजली कलेक्टिव नहीं का समझ हिस्सा पाया हूँ, हूँ। अगर आप बहुत एक लाइन में मुझे सवाल करें तो मैं शायद जवाब दे पाऊंगा। तो हसीना खान ने जैसे कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया है कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट हुआ है इस वजह से, मार्जिनलाइजेशन की वजह से। तो मैं उस वाले में पूछना चाहता हूँ कि हमें एक्चुअली ये मार्जिनलाइजेशन का जो प्रॉब्लम वर्ड हमें पता है, बट इससे क्या इश्यूज निकलते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, शायद हमने मेजर नहीं किए इतने अच्छे से सोसाइटी में। तो इस तरह की और क्या चीजें हैं जो हमें शायद मेजर करना चाहिए, जिससे हमें थोड़े इम्पैक्ट्स के बारे में थोड़ा और क्लियरिटी हो। आपकी बात सही है। जैसे जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उन्होंने इस इश्यू को उठाया कि मतलब पहले एक परसेप्शन था कि मुसलमान जॉब में है नहीं है, या उनके पास नौकरियां हैं या नहीं है, या वो बिजनेस में है या नहीं है। तो असेसमेंट तो बहुत तरीके से किया जा सकता है, और मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। आपको अगर आपकी आइडेंटिटी की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यू हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं और ज्यादा नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। जैसे मतलब अक्सर ये कहा जाता है कि आई हैव अ मुस्लिम फ्रेंड, या आई हैव अ हिंदू फ्रेंड, या ये जो पूरा एक डिस्कोर्स है उसका, उससे कहीं ना कहीं एक्चुअली में आपकी मेंटल हेल्थ को फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मेरा भी एक मुस्लिम दोस्त है, तो कहीं ना कहीं उनका एक जो प्रेजुडिस है दिमाग में वो शो करता है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। वो कल्चर, दिस इज अनदर केस ऑफ इस्लामोफोबिया। ये अक्सर जो आके कहते हैं कि नहीं देखिए हमारे तो सारा काम जो है हमने मतलब विद इन विलेज कहते हैं कि नहीं हमारी तो हेल्प ही उन्होंने की थी। अब जो खैरोन जी, मैं जिस बात पे खैरोन जी से एग्री नहीं करता, खैरोन जी का कहना है कि गुजरात में हमारी सुरक्षा ही हिंदुओं ने की थी, आग भी तो किसी पर्टिकुलर लोगों ने ही लगाई थी। पर हम टोटली ऐसा भी तो नहीं कह सकते ना इदरीस के कितने लोग अभी आपकी बात में ही था कि कितने लोग पनाह देते हैं या कितने लोग रेंट पर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मतलब है माहौल, ऐसा नहीं है, बट वो ब्लैक एंड व्हाइट हम नहीं कह सकते। मैं इस बात से आप अभी भी इसलिए मैंने वर्ड बहुत ही सोच समझ के लिया था। मैंने बिल्कुल भी ना तो ये कहा था कि हिंदू कम्युनिटी है, ना मैंने ये कहा था कि जो लोग मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा कि मेजोरिटेरियन बहुसंख्यकवाद जो लोग हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि दिस लैंड बिलोंग्स टू अस, या ये हम इसके मालिक हैं, या ये हम हैं तो ये सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप आई एम श्योर आप मुझसे एग्री नहीं कर रही, लेकिन मेरा क्वेश्चन उन लोगों से नहीं है। मैं ये नहीं कहता, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल वे में कहूँ, जो 91 में जो एक प्रोफेसर कॉमरेड वर्धमन ने एक पटना में कहा था कि इंडिया में अगर सेक्युलरिज्म है तो हिंदुओं की वजह से, और मैं कहीं ना कहीं अग्री करता हूँ उससे। आज अगर सेक्युलरिज्म उस कगार पे नहीं है तो उसका रीजन भी वही है। लेकिन ये तो कुछ इस तरीके से है कि आप जातिवाद का आरोप सीधे दलितों पे लगा दो, ये जातिवाद तो दलितों ने किया है। तो अगर आप सेक्युलरिज्म का कह रहे, सेक्युलरिज्म को मैंने खत्म किया, तो ये तो सवाल तो वैसे ही हो गया कि आपने महिलाओं को बोल दिया कि आप अपनी स्थिति के लिए आप ही जिम्मेदार हो। या अगर लेकिन अगर कल किसी कोई मेल या पुरुष जाके पैट्रियार्की को खत्म करने के लिए कुछ कर रहा है, तो वो मुझे लग रहा है मर्द किसी औरत पे एहसान नहीं कर रहा है। वो जो सालों का एक ऑपरेशन था महिलाओं के प्रति उस मर्द का, वो उसका प्रायश्चित कर रहा है, बेर मिनिमम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक नसीर का भी कुछ he wants to say something. Nasir, unless Satakshi wants to. नहीं, that only. Yes. हेलो नसीर प्लीज बोलिए। कैन आई स्पीक? यस प्लीज। मेरा ये कहना है कि हमारे दो चीजें आ रही है मुझे, जैसे जो बातें हो रही है इधर साहब से मैं कह रहा हूँ कि कहते हैं ना वो फेज के साथ लंबी एक गम की शाम मगर शाम ही तो है। मगर दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि दो चीजें रहती है। एक वो रहती है कि जो जिस पे हमें कंट्रोल हो सके, दूसरी वो रहती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे वो फिलॉसफी भी है कि जिन चीजों पे हमें कंट्रोल है, मुझे लग रहा है जो मुस्लिम कम्युनिटी एज ए कलेक्टिवली वो उन पे फेल हो चुकी है। मिसाल के तौर पर हमारे घर में कंट्रोल अभी भी है, तो हमने अपने घर को ठीक नहीं कर पाए। अगर घर से बाहर हमारी अपनी सोसाइटी है, हम सोसाइटी के साथ काम अच्छे, मुस्लिम सोसाइटी से काम अच्छे से नहीं कर रहे। अगर मतलब एज एक ना यहाँ पे हिंदुस्तान में पारसी कम्युनिटी है,
वो तो माइनॉरिटी है, मगर उन्हें अपने इकोनॉमिक लेवल, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी है कि मतलब जो पॉलिसीज बनती है उन पे उनका असर रसूख रहता है। और उनका भी अगर कोई बंदा मर जाता है वो नेशनल न्यूज बन जाती है कि अगर वो नेशनल डेथ भी मर जाए। अब अगर मुस्लिम मारा भी जाए तब भी क्योंकि हमारी जो खुद की वक़्त है, हमने उस काबिल खुद ना बने। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे के रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं, जितनी हमारे पास है, मुझे लगता है उन पे हमें ज़्यादा अभी फोकस करना चाहिए। वो सर जब हमारी कंडीशन किसी हद तक ठीक हो जाए, वो चीज़ें भी विद द पासिंग ऑफ टाइम हमारे पास आ जाएंगी। क्योंकि जब हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं, हम जो बाकी चीज़ें जब हम कर भी सकते थे उनको भी हम छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैडम ने भी कहा कि स्कूल नहीं है, हाँ हमें पता है कि क्यों नहीं हम स्कूल ज़्यादा बनाए। इस तरह जो हमारे बैतुल माल है क्यों नहीं वहाँ से पैसे लगा के जो मतलब डाउन ट्राउन सेक्शन जो मुस्लिम है उन पे खर्च करे पैसे। हम ये नहीं कि सिर्फ स्टेट की तरफ देखें हर बार, क्योंकि ये पता है जब मेरे मेजर चैनल स्टेट है तो उसके तो जो असर वो पड़ ही जाएगा जिस तरह से पढ़ना होगा। अब जो हमारे कंट्रोल, मुझे लगता है उस पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। बाकी चीज़ें भी वो तो है, वो हमारे जहन में रहनी चाहिए। मिसाल जो औरतों के हुकूक है, हम मुसलमान के इस्लाम के नाम पे जो हमारा पर्सनल लॉ है वो भी उनको नहीं दे रहे हैं। अगर नबी पाक ने 1400 साल पहले उनको कुछ हुकूक दिए थे, प्रॉपर्टी में राइट दिए थे, उनके जो मैरिज में जो उनके राइट्स थे वो थे, जो उनके डाइवोर्स में राइट्स थे, जब हमने उनसे खुद लिए तो किसी दूसरे को बाहर से आना पड़ा और उनको वो देने पड़े। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे पास नसीर, मैं आई एम जी, रियली बोलिए। सॉरी, मुझे आपको काटना पड़ेगा क्योंकि इर्तिका का इफ्तार का टाइम है, उनको आई एम श्योर भूख लग रही होगी तो उनको जाने। सो मैं आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट। इर्तिका एक्चुअली एक पार्टिसिपेंट थे, शी इज फ्रॉम कश्मीर और वो कुछ बोलना चाह रहे थे तो आई थिंक यस प्लीज। Assalamu alaikum. My name is Irtika Bashir. I'm from Kashmir, District Anantnag, from a small town, Bijbehara. Graduated from Kashmir University in Economics and Political Science, and then pursued my master's in Economics from the same university. I'm currently working as a general line teacher in National Innovations Public School, Zanapura, which is basically in Shopian, one of the district of Kashmir. As I can say, art is an expression of our thoughts, emotions, intuitions, and desires, but it's even more personal than that. It's about sharing the way we experience the world, which for many is an extension of personality. As it helped me in expressing of myself, and it helped me to convey those emotions that were difficult to verbalize. In the recent workshop, Art for Advocacy, there we used different ways to express our emotions through art, such as using line or color to represent emotions. We used puppets, movements, represent emotions. We used puppets, movements like dancing, or we used words like in poetry and storytelling. The methods were unique as the person expressing in of them. In this workshop, we used a toolkit, and inside it was a zine making process, which was terribly, I can say more, we can say it was very much innovative progress for our. I shared a real basic story of a woman who was terribly tortured by her in-laws at the age of very 20 only. She was forced to have children at the very young age, and no government or any type of organization helped her though. So it was a zine. It was the zine which made it possible to share the thing which was hidden in my heart from very vast period of time. Because zine communities arise outside of mainstream media system. It represents ways in which people understand and engage with media. It circulated my voice to the people who were eagerly waiting out there to hear my voice. All I can say it is actually my clear to you all from this Art for Advocacy workshop. इसने हमें बहुत कुछ सिखाया. All I can say is it gave us a voice. इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें हमसे कहलवाई, which were from a very past time, which were hidden inside us. From this Kashmir, we participated at least 4 girls from here, and all the 4 girls shared 4 different stories through this art. So it was not even possible from us to share with you all. So thanks to Shatakshi ma'am, Nikita ma'am, who helped us here to share our voice. Thanks for giving us the voice also, we can say. Thanks a lot. Thank you so much, Irtika. थैंक यू इर्तिका, थैंक यू। आप प्लीज हम अपने साथ हमारी जीन्स भी शेयर करिएगा जब भी आपको मौका मिले। आई वुड लव टू गो थ्रू इट।
And Yeah, sure, definitely. you can go ahead and go for your आप प्लीज आप Yes. खाना खाइए. Thank you. I think Anand had a question and Nasir Yes, has yes. his hand up. Yeah, I don't have question. Just I'm saying that I observed that while conducting the several workshop in the schools, that चाहे वो underprivileged हो या marginalized community हो, उनके लिए एक इंस्पिरेशन लेना सोसाइटी से बहुत डिफिकल्ट होती है. क्योंकि अगर हमारे घर के बगल में कोई आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर या किसी अच्छे पोस्ट पे है, हमें अवेयर ही नहीं होता है, क्योंकि एक छोटे शहर में उनकी कोई बायोग्राफी नहीं होती है और जनरली वो लोग सिर्फ डेजिग्नेशन से जाने जाते हैं. तो जनरली ये होती है ना कि एक ये जो यंग जनरेशन को है ना कि हर तरफ नेगेटिव ही रहती है. एक आर्ट एक अच्छा मीडियम है, बट अगर हम आर्ट को देखें तो वो एक दिन में नहीं है वो एक्सप्रेस कर पाते बहुत सारी चीजें. मैंने आपकी वीडियो को तो बहुत इंस्पायरिंग वीडियो थी. मुझे नहीं लग रहा कि ये एक दिन का वर्क होगा या 2 घंटे का वर्क होगा या 1 वीक का होगा. इसमें बहुत सारे थॉट प्रोसेस लगते हैं और ओपन होना किसी चीज को, वहां पे क्या है ना, मेंटल हेल्थ एक वेलबींग एक है, सोसाइटिकल प्रेशर भी है कि मैं अपनी बातों को अगर किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ वो किस तरह ले रहे हैं वो बातों को. तो मेरा एक मानना ये है कि इंस्पायरिंग आर्ट भी होनी चाहिए. ये चीजें यही नहीं रहनी चाहिए. एक कोई कॉफी टेबल बुक बन सकती है या गेम बन सकती है जहाँ पे हम लाइक पीयर लर्निंग के थ्रू भी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, जो बहुत ही कुछ पॉसिबल है, हो सकता है. थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. कोई किसी को कुछ सवाल जवाब या कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करना चाहते हैं? और अगर हम वो डिस्कशन जो कर रहे थे विद इद्रिश एंड नसीर वो करना चाहते हैं कंटिन्यू, सो प्लीज प्लीज प्लीज. नसीर आप कुछ बोल रहे थे बट आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको काटना पड़ा बीच में क्योंकि इर्तिका को जाना था. तो आप प्लीज अपना कंक्लूड कर सकते हैं. मेरा भी तो हो ही जाए. थैंक यू मैडम, ये बहुत अच्छा डिस्कशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान चल गया जिनकी तरफ हम सोचते नहीं, और ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट होते रहने चाहिए, तो इससे फायदा होता रहता है. और ये जो है, क्योंकि जब मुझे एक चीज लग रही है जो मैंने जिंदगी में सीखी है कि वो ये रहता है कि जब हम किसी चीज पे जब ज्यादा अटक जाते हैं कि जो मतलब जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें भी रहती है, बहुत जब हमें लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा तो फिर कभी कुछ हो नहीं पाता है. मगर अब हम थोड़ा बहुत ध्यान दें, क्योंकि होपलेसनेस तो है ही नहीं, हम तो होपलेस हो नहीं सकते. ये तो वो करो या मारो जैसी सिचुएशन है, या खड़ा रहना है या चुप करके. अगर चुप करके बैठेंगे तो मतलब वो एग्जिस्टेंस हमारी खत्म हुई. क्योंकि जैसे सर ने इद्रिस भाई ने कहा कि वो जू की एग्जांपल दी, उनने इजराइल बना दिया, वो कहीं थे ही नहीं, वहां पे आ गए, फिर उन्हें एक कंट्री बना दी, और पूरे मिडिल ईस्ट को क्या उनसे डरता है. और इतनी टेक्नोलॉजी, जितने नोबेल प्राइज विनर वो उन्हीं लोगों में से. अगर हम उनकी तरफ देखें फिर भी तो हमारी कंडीशन उनसे ज्यादा अच्छी है. और मुझे लग रहा है वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजू में इजतराब नहीं है. तुझे किताब से मुमकिन नहीं कि तू साहिब किताब मगर किताब खान नहीं. क्योंकि समटाइम यू हैव टू गेट सम सॉर्ट, मतलब यू शुड गेट सम सॉर्ट ऑफ दिस प्रेशर इन योर लाइफ सो दैट यू विल गेट डेवलप्ड. जो कांग्रेस ने वो एक तरह से आफीन पिलाई थी मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमान के, वो कुछ मखसूस तक वो इलिट मुस्लिम को थोड़ा आगे ले रहे थे, बाकी को मार्जिनलाइजेशन पे लाया था. फिर भी तो मोदी तो इतना कर रहा है कि उनको थोड़ा जगा रहा है कि चलो नहीं, आपके एग्जिस्टेंस को खतरा है. मुझे लगता है बेदारी आ रही है मुस्लिमों में. मुझे लगता है वो पॉजिटिव स्टेप है उस साइड से. थैंक यू थैंक यू. अच्छा वो मैंने आपसे पूछ लिया, मुझे लगा कि आपका बहुत मन था बोलने का, कुछ मेरे को आपको रोकना पड़ा, बट आई एम ग्लैड यू स्पोक. व्हाट, थैंक यू. नहीं इद्रिस भाई बोलिए. मुझे लगा इद्रिस भाई थोड़ा टेंशन में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. शायद ऐसे ही दिखता हूं. वो ह्यूमन राइट्स लॉयर है ना, तो उनको अपने चेहरे पे ही हैज टू हैव दैट लुक ऑन हिज फेस.
Human right. I'm बिल्कुल नहीं very पता आप good. क्या बात कर रहे हैं, कौन सा लुक है, बट मैं सही दिखता हूँ। I'm just a poor Joe, just a poor Joe. मैं कह रहा हूँ मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ JNK में, मैं भी Okay, एडवोकेट हूँ, okay. मगर फिर अरे देखिए वाह। बेदारी के करने बारे में को मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूँ। बेदारी की बात आई तो मैं एक नोमैडिक कल्चर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, वेस्टर्न राजस्थान में। मेरी पूरी कम्युनिटी में मैं पहला लड़का हूँ जो यूनिवर्सिटी गया था। ये उसके बाद मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये इट्स लाइक यू नो कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कुछ और बच्चे भी एजुकेशन में आ जाए, और आए भी हैं। पिछले 3 सालों में जब से हमने कोशिश की है, 60 से ज्यादा बच्चों को हमने कॉलेजेस भेजे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक होती है एक्सपेक्टेशन और एक होती है अकाउंटेबिलिटी। आप विद इन कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चूंकि वो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है तो थोड़ा काम करें खुद पे और उसको आगे बढ़ाएं। एक्सपेक्टेशन के लिए आप किसी से सवाल नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सरकार से है। अगर वो काम नहीं कर रही तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑलरेडी बहुत डिप्रेस कम्युनिटी है। मैं खुद कभी भी इतना डिप्रेस हो जाए मुझे लगता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे कुरान की एक आयत याद आती है जिसका मीनिंग है कि लाइफ इज लाइक अ बर्ड। तो अगर इसका एक उसका फेदर, इसका एक जो पंख है, अगर वो डर है तो दूसरा होप है। तो एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फियर ही होगा, होप नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है तो बस कायम है। करेक्ट करेक्ट। जो कहे नस्र मिनल्लाह फतहुल करीब, अल्लाह से दुआ, अल्लाह से करो, बाकी सब कुछ ठीक हो। Yes, that's a good note to say. Yes. Hope. It's ending on hope, I think. So that's nice. Yes, yes, yes. Definitely. Thank you, Khairunji. Thank you, Idrish, and thank you, Ritika, who I am sure is loving what she's eating right now. I hope she is enjoying her meal right now. And thank you so much, Satakshi and Nikita, for letting me be part of this this program and the session today. I genuinely enjoyed moderating, and I hope whosoever participated, they could participate and they could question and put across their point of view as freely and as cohesively as possible. So thank you so much. Satakshi, over to you now. Thank you, Aishwarya. I won't say much, but बहुत शुक्रिया इद्रिश, खैरून जी, नसीर और जो भी पार्टिसिपेंट थे, because I feel like to create a space like that जहाँ ये conversations हम कर भी सकें बहुत जरूरी है। I guess वो बहुत ही छोटी चीज है, but शुरुआत है किसी चीज की, and I feel like we should keep doing this. And बहुत ही अच्छा बोले थे जब इद्रिश said that it should be a conversation, and I feel like ऐसे और spaces होने चाहिए जहाँ we allow everyone to just speak. माने we all could have different perspectives, जैसे खैरून जी के भी अलग perspective थे, and we completely respect it. और हम सब एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं क्योंकि हमारी रियलिटीज और जिस जगह पे हम रहते हैं और जहाँ से पले बड़े हैं वो बहुत अलग रहा है। तो फिर भी एक ऐसी जगह बनाना जहाँ हम ये सब बोल सकें और फिर भी अग्री टू डिसएग्री कर सके, आई फील लाइक बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज, एंड थैंक यू सो मच फॉर creating that space with us. So thank you. And Nikita, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। thank you Dish. और ये बात बहुत तसल्ली से सुनने के लिए। No, I think, I mean, सिर्फ vote of thanks देना रह गया है, and for formality's sake, of course, we'll have to thank everybody who's been in the process, beginning from our funders, NORAD, SICA, Elicit, Art for Freedom. But for everybody in the room, I think ye need for conversation came from personally working in spaces. I don't know Satakshi or मेरा कितना background लोगों को पता है, but ये पूरा project इसीलिए शुरू हुआ था because we've been working with not just minority communities, a lot of communities on the margin, and it felt like a place to have a conversation. जहाँ पे चीजें debating ना हो जाए, but genuinely बैठ के हम बात कर सके ताकि हम समझ सके. Because if there is a resolution, then we have to believe that it's us working towards it. And I just want to thank everybody in the room कि आपने जो ये space को hold किया, including from the moderator speakers to every single participant who was in the room, to hold this space, to very with so much patience hear out different perspectives so that we can actually think about them.
For me, it almost culminates the whole project. And keeping all of these point of views in mind, we will probably reach out because हम एक toolkit बना रहे हैं और toolkit का एक ही chapter पूरा हो सका है इस workshop से, और हम hope कर रहे हैं कि हम इन सारे perspectives को लेके next chapter पे काम शुरू कर सकें. So thank you so much everybody for being in the room. And yeah, if you want to follow us, we are Art for Advocacy. And there is a very beautiful illustration that I believe we were going to end with. So this is the. But share करना है? Oh, okay, yeah. कर This दूँ? is मैं- just. I can share. I can हाँ, share. ठीक है, we Right can here. just show it. Right here. This is just. See, can you see? This is basically the cover of the toolkit that we are creating, Art for Advocacy. It's wonderful. It's wonderful. Thank you. Yeah, it is. I'm so happy it's not black and white because I just know black and white. I'm so happy it's colorful. Yeah. I don't know if Idrish would agree with me or not, but I'm glad there's a lot of color in the photo. Expect I'm a lot of colorblind. colors. Suddenly you're colorblind now. No, I'm colorblind. Oh, okay, Oh, okay. We will write descriptions for you. But I hope. No, but it's really beautiful. There's no Yeah. question. Thank Absolutely beautiful. you. We hope that we can take this forward. And thank you, everyone. Thank you. Thank you so Bye. much. Thank you. Take care, Thank you. everyone. Thank you Have so a good day. Yes. Thank you. Have a good weekend. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye.